Good evening, all of you. Today I am going to teach BHU BSc Maths Entrance Trigonometry question. What is trigonometry equation? ऐसा समीकरण जिसमें किसी अज्ञात कोण के एक अथवा एक से अधिक त्रिकोणमितीय फलनों का समावेश होता है, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के वह हल जिनके लिए 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई होता है, उस समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। कुछ समीकरण, कुछ त्रिकोणमितीय समीकरणों, कुछ त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक हल फर्स्ट है इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, if sin theta equal to 0, then the general solution of theta equal to, then the general solution of theta equal to, then the general solution of theta, general solution of theta equal to n pi, general solution of theta equal to n pi. If sin theta equal to 0, then the general solution of theta equal to n pi. If n की वैल्यू क्या हो, n इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। जैसे साइन थीटा के स्थान में दिया पाई रखेंगे, साइन पाई या साइन 2 पाई या साइन 3 पाई, सबकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन पाई हो या साइन 2 पाई हो या साइन 3 पाई हो, सबकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू n पाई। सेकेंड होता है इफ cos थीटा इक्वल टू 0, यदि cos थीटा इक्वल टू 0 हो, इफ cos थीटा इक्वल टू 0, देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, then general solution of theta, general solution of theta equal to 2n plus 1 pi by 2 होता है। if cos theta equal to 0, यदि cos theta equal to 0 दिया हो, उस समय त्रिकोणमितीय समीकरण में थीटा का जो व्यापक मान होता है वह थीटा इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 होता है। if cos theta equal to 0, then the general solution of theta equal to 2n plus 1 pi by 2. थर्ड है if tan theta equal to 0, थर्ड है if tan theta equal to 0, then the general solution of theta, then the general solution of theta, general solution of theta equal to n pi. If tan theta equal to 0, then the general solution of theta equal to n pi होता है। नेक्स्ट है if sin theta equal to sin alpha, if sin theta equal to sin alpha, if sin theta equal to sin alpha, यदि sin theta equal to sin alpha हो, then the general solution of theta, then the general solution of theta,
जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा. If sin theta equal to sin alpha, then the general solution of theta equal to n pi plus ब्रैकेट में माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा होता है. यदि sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा हो तो थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा होता है. नेक्स्ट है if cos theta equal to cos alpha, if cos theta equal to cos alpha, then the general solution of theta equal to, then the general solution of theta, general solution of theta equal to होता है 2n pi plus minus alpha. If cos theta equal to cos alpha, then the general solution of theta equal to 2n pi plus minus alpha होता है. यदि cos theta equal to cos alpha हो तो थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल टू 2n pi plus minus alpha होता है. नेक्स्ट है if tan theta equal to tan alpha, tan theta equal to tan alpha, then the general solution of theta, then the general solution of theta, general solution of theta, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा. If tan theta equal to tan alpha, then the general solution of theta equal to n pi plus alpha. यदि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा का जो व्यापक मान होता है वह थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है. नेक्स्ट है if sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha and tan square theta equal to tan square alpha. इन तीनों समीकरण के लिए एक ही फार्मूला होता है. if sin square theta equal to sin square alpha. नेक्स्ट है cos square theta equal to cos square alpha, tan square theta equal to tan square alpha. if sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha and tan square theta equal to tan square alpha, then the general solution of theta equal to, then the general solution of theta equal to, then the general solution of theta, उस समय थीटा के जो व्यापक मान होता है वह होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा. if sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha, tan square theta equal to tan square alpha, then the general solution of theta equal to n pi plus minus alpha होता है. क्वेश्चन देखिए इस पर आधारित. फर्स्ट क्वेश्चन है if sin theta equal to 1 by 2, if sin theta equal to 1 by 2, find the general solution of theta. यदि sin theta equal to 1 by 2 हो तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए. और सॉल्यूशन हो जाएगा sin theta equal to 1 by 2, sin theta equal to 1 by 2. कितने डिग्री का मान होता है साइन में? साइन 30 डिग्री को रेडियन चेंज करेंगे. साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 इंटू पाई बाई 180. साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 इंटू पाई बाई 180. सो साइन थीटा इक्वल टू यह हो जाएगा साइन, इससे कैंसिल कर देंगे 6 टाइम में, यह हो जाएगा साइन पाई बाई 6.
Hence the general solution of theta. Hence the general solution of theta. General solution of theta. General solution of theta equal to n pi plus minus 1 to the power n into pi by 6. ये जो आप लिखे थोड़ा सा ऊपर लिख दिए, इफ साइन थीटा ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6। अब देखिए इफ साइन थीटा इक्वल 1/2, यदि साइन थीटा इक्वल 1/2 दिया हो तो उस समय थीटा का व्यापक मान निकालना है। तो इफ साइन थीटा इक्वल 1/2 तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा। आंसर सोल्यूशन कैसा होगा, साइन थीटा इक्वल 1/2, 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30। साइन 30 को चेंज करेंगे, जो 30 डिग्री है इसको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 इंटू पाई बाई 180 करेंगे, 30 6 180, सो पाई बाई 6 होगा। हेंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2। सेकेंड क्वेश्चन इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2। हेंस पहले आप क्वेश्चन है इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा। यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सोल्यूशन कैसे होगा, cos थीटा इक्वल टू √3/2। cos थीटा इक्वल टू √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू cos में होती है, इसको आप यहाँ डिनोट करेंगे तो यह cos 30 की वैल्यू होती है। सो cos थीटा इक्वल टू cos 30 डिग्री को रेडियन चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, यह 36 180 होगा। सो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos पाई बाई 6। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos पाई बाई 6। Hence the general solution of theta. Hence the general solution of theta. Theta equal to 2n pi plus minus alpha. Hence the general solution of theta. जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा के स्थान पर क्या रखना है, पाई बाई 6, इसलिए यहाँ लिख देंगे पाई बाई 6। देखिए इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2, cos थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो उस समय आपको थीटा का व्यापक मान निकालना है। cos थीटा इक्वल टू √3/2, √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 है, इस 30 को रेडियन चेंज किए, पाई बाई 6 हो गया। तो हेंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू आपके फार्मूला है 2n पर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इन प्लेस ऑफ अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6। हेंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू √3/2, tan थीटा इक्वल टू √3, if tan theta equal to 1/√3, यदि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। इफ tan थीटा इक्वल 1/√3 देन द जनरल फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, इसको आप लिखेंगे तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। tan थीटा इक्वल टू tan 30 को रेडियन चेंज करेंगे, 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180, इसको आप कैंसिल कर देंगे 6 टाइम में, तो tan थीटा इक्वल टू यह हो जाएगा tan पाई बाई 6।
hence the general solution of theta, hence the general solution of theta, general solution of theta, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 6। क्वेश्चन है if tan theta equal to 1/√3 find the general solution of theta। सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे? if tan theta equal to 1/√3, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? if tan theta equal to 1/√3, 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 को रेडियन चेंज करेंगे पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि 30 को रेडियन चेंज करने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 जा 180 होगा, इसलिए tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 6 हो गया। Hence the general solution of theta equal to n पाई प्लस पाई बाई 6 होगा। आज के वीडियो बस इतना ही होगा। ये वीडियो देखने के बाद वीडियो के अंत में आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट अवश्य करें।